Hello everybody, my name is Amar Jaju और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट. Today on I Thank My Doctor, we have with us pulmonologist Dr. Sameer Arbut. Today on the occasion of World No Tobacco Day, that is on May 31st, we are going to talk to Dr. Arbut about the relevance of this day, about quitting tobacco from your life, the benefit it can give in your life, and how is it possible. सबसे पहले Dr. Arbut, you're welcome to our show. I Thank My Doctor. Thank you for inviting me. Dr. Sameer, first of all, मैं जानना चाहूँगा कि what is the relevance of this day, which falls on May 31st, the World No Tobacco Day. What is the relevance of this day? तो ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, दिस इज सेलिब्रेटेड फॉर सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ tobacco. And there is a lot of efforts and a lot of money being pumped in by the tobacco industry to promote various products like cigarettes and all. So WHO has taken this effort that we should celebrate this day, and we should educate people when it comes to the harmful effects of smoking or chewing of tobacco. And आप लोग शायद जानते नहीं है, पर हर कंट्री की जो जीडीपी है उसमें से बहुत सारा एक बड़ा अमाउंट जो है वो ऐसी डिजीजेस के ट्रीटमेंट में जाता है जो टोबैको की वजह से होती है. और बहुत सारा लोगों का जो एक वर्क एफिशिएंसी है, एक यूथ का आपका जो वर्क एफिशिएंसी है वो हैम्पर होता है जब लोगों को टोबैको रिलेटेड बीमारियां होती है, और उसकी वजह से फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे इसका इफेक्ट होता है. So जैसे आपने बताया कि बहुत सारा the tobacco industry is pumping in a lot of money to promote tobacco products. Cigarettes है, there are other tobacco products as well. On the other hand, WHO ने ये कहता है कि ये डे आपको सेलिब्रेट करना है to create awareness about it. अवेयरनेस टोबैको के लेके काफी सारी है. हम लोग बहुत सारे लोग हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं इंटरनेट पे. अभी तो इंटरनेट के माध्यम से सबको पता चलता है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ इट. एवरी टोबैको प्रोडक्ट हैज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन इट एज वेल कि आपको नहीं करना है. आप जैसे डॉक्टर्स हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस हो. मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि which is the most difficult, what makes it so difficult for a patient, for not a patient, what makes it so difficult for a person to quit tobacco addiction? Yeah, so first we need to understand कि tobacco का addiction होता क्यों है, so that then we can understand कि why is it difficult to actually quit tobacco. So most of the tobacco products they are promoted in a certain way जिसको हम बोलते हैं surrogate advertising. So there is an effort taken to actually target a very young, a very susceptible audience to get into consuming tobacco products, especially youngsters when they are in their teens. So many times you must have seen that movies or certain videos are used as platforms wherein the protagonist or the lead is smoking tobacco, and this is how the new generation or the youngsters are exposed to this, and they somehow relate these habits such as smoking to being cool or being a way of fighting stress. So यहाँ से ये शुरुआत होती है. एंड व्हेन वी गो इनटू द साइंस ऑफ इट, तो जब भी ये निकोटिन या टोबैको जब हमारे बॉडी में जाता है तो एक रिवॉर्ड सिस्टम हमारे ब्रेन में रहता है. मतलब एक हमारे ब्रेन का ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट रहता है जो आपको एक लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है. तो वहां पे एक डोपामिन रिलीज होता है जो आपको एक फीलिंग ऑफ गुडनेस, एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट देता है जो इन प्रोडक्ट से आपको मिलता है. ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है, ये एक बहुत कम समय के लिए काम करता है. इसलिए व्हाट यू नीड इज यू रिक्वायर मोर एंड मोर रिपीटेड इनफ्लक्स ऑफ द सेम सिग्नल्स, which is why you tend to have these products more and more, and eventually then this leads to addiction. And quitting is not as easy as it is often as we see on the products, and as it is often given in the newspapers and all. It takes a lot of efforts and there's a science behind quitting these products. So that's why इसको बहुत समय लगता है. मुझे एक और चीज पूछना था कि हम लोग जितने भी लोग टोबैको यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं,
So all of us know about the tobacco causes like hypertension, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं. कोविड के टाइम पे भी काफी सारे लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया उनको ये भी पता चला. उसके बाद में द मोस्ट कॉमन कैंसर्स दैट आर एसोसिएट जो हम लोग पढ़ते हैं वो दोज आर लंग कैंसर्स एंड ओरल कैंसर्स. ओरल कैंसर्स को दोज मोस्टली जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं टोबैको, कंज्यूम करते हैं उसको, या लंग कैंसर्स उनके लिए जो इनहेल करते हैं टोबैको इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सिगरेट्स एंड ऑल. बट वुड यू like to tell us what are the other kind of cancers that are associated with the tobacco abuse? Yeah. So whenever we talk about tobacco, the first thing that comes to mind is cancer, which I think is one of the most serious outcomes when it is related to tobacco consumption. But ये एक थोड़ा misleading भी है बात, because बहुत कम लोगों को actually cancer होता है tobacco की वजह से, और लोग इसी वजह से काफी बार इस बात को लाइटली लेते हैं टोबैको को, क्योंकि उनको लगता है कि कैंसर ही एक आउटकम है. कैंसर छोड़ के देयर इज अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन. आइदर इट कैन बी ओरल कंजम्पशन और इट कैन बी स्मोकिंग, एंड दीज डिजीजेस कैन एक्चुअली मेक योर लाइफ वे मोर डिफिकल्ट देन व्हाट इट माइट बी इवन विदाउट हैविंग कैंसर. तो इसमें सबसे पहले लंग्स की रिलेटेड हम बात करते हैं. तो सबसे कॉमन जो सभी लोग जानते हैं वो है लंग कैंसर. कैंसर में और काफी सारे आते हैं. एब्डोमिनल कैंसर आता है. बॉडी के काफी सारे पार्ट्स है जहाँ पे कैंसर का कॉज स्मोकिंग से अभी रिलेट किया गया है. लंग्स में एक बहुत कॉमन डिजीज है जिसको हम COPD कहते हैं, विच इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. तो जो लोग स्मोकर्स रहते हैं उनको आफ्टर द एज ऑफ 40 उनकी लंग की कैपेसिटी कम होती है. उनकी लंग का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट 60 to 50% तक आ जाता है, और उनको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है जिस वजह से वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं. तो ये एक बहुत कॉमन चीज है. ये छोड़ के जो भी स्मोकर्स रहते हैं उनको ट्यूबरक्यूलोसिस होने के चांसेस ज्यादा है. उनको ब्रोंकिएक्टेसिस नाम की एक बीमारी होती है, और सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो है वो स्मोकर्स को ज्यादा होने के चांसेस है. और जब होता है तो उसकी सीवियरिटी भी ज्यादा होती है, जैसे हमने कोविड-19 में देखा है. स्मोकर्स के लंग्स की जो इम्यूनिटी रहती है, उनका एक जो इम्यून सिस्टम रहता है वो कुछ तरीके से वॉश आउट हो गया रहता है, और उनको ये इन्फेक्शंस जब होते हैं तो ये काफी सीवियर होते हैं. लोगों को स्किन इश्यूज होते हैं स्मोकिंग की वजह से. आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पे फैट कलेक्ट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से फैट एम्बोलाई होते हैं. हार्ट पे इसका डायरेक्ट इशू होता है. जब भी स्मोकर्स लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करते हैं उनको हाइपरटेंशन होता है. हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है. जब हम कार्डियक अरेस्ट, MI या हार्ट अटैक की बात करते हैं तो उसमें स्मोकिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है. ये छोड़ के फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है. मेन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है. और काफी बार स्मोकिंग की वजह से आजकल ये देखा गया है कि आपका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो विद टाइम उस पे भी आपके स्मोकिंग का एक इल इफेक्ट होता है. डॉक्टर समीर, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आपने बताया कि द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वन कैन हैव मेडिकली इफ दे कंटिन्यू स्मोकिंग और इफ दे हैव अब्यूज्ड टोबैको फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ you are a successful pulmonologist. हम लोगों ने सबने देखा है कि कोविड के समय पे you were on the front line and you have treated thousands of patients in the last 1.5 years. Keeping in mind the patients specifically who had a history of long-term smoking or tobacco use, what kind of complications did you see when it came to COVID-19 when you were treating those patients? यस. सो जब हम बात करते हैं स्मोकिंग और कोविड-19 की एंड उसका जो क्लिनिकल आउटकम है, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. एक वो लोग जिन्होंने स्मोकिंग किया है और उनको अभी कोविड हुआ है, और दूसरे वो लोग जिनको स्मोकिंग की वजह से ऑलरेडी कोई डिजीज डायग्नोस हो चुकी है और अब उनको कोविड-19 हुआ है. तो हमने ये हमेशा देखा है कि जब भी किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो 2-3 चीजों से हम उसकी सीवियरिटी देखते हैं. पहले तो पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, मतलब खांसी है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, बहुत सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, या फिर CT स्कैन में चेंजेस है, या ब्लड टेस्ट में आपके कोई चेंजेस है. तो स्मोकर्स में ये देखा गया है कि स्मोकर्स को जब कोविड-19 होता है तो उनकी जो कफ की कंप्लेंट है वो काफी ज्यादा होती है. इसको हम एक स्मोकर्स कफ कहते हैं. स्मोकर्स का जो थ्रोट रहता है वो कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड रहता है. वहां पे हमेशा
थोड़ा ना थोड़ा पार्टिकुलर डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से थ्रोट को कभी भी कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलता है। ऐसे जगह पे अगर आपको कोविड-19 या कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको जो कफ है वो थोड़ा ज्यादा सीवियर होता है। इसी के साथ में जब आपके लंग्स में निमोनिया होता है या फिर आपके सीटी स्कैन में हम चेंजेस देखते हैं तो स्मोकर्स के जो एयरवेज है वहां पे भी इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हैम्पर हो चुका रहता है। इस वजह से इनमें भी कोविड के सिम्टम्स ज्यादा दिख के आते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको स्मोकिंग की वजह से ऑलरेडी कोई डिजीज डायग्नोज है, मतलब उनको सीओपीडी है, उनको हाइपरटेंशन है, उनको ऑलरेडी लंग कैंसर है, ब्रोंकिक्टेसिस है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको कोविड-19 होने की वजह से इनका जो आउटकम है वो थोड़ा सा सीवियर होता है। आप इजीली ये समझिए कि अगर किसी को कोविड-19 होता है और उनकी लंग की कैपेसिटी 90 से 80% आती है तो वो 10% का फॉल होता है। बट किसी स्मोकर को अगर पहले से सीओपीडी है और उनकी अगर लंग कैपेसिटी ऑलरेडी 60 या 50% है तो उनको कोविड-19 का जो 10% फॉल है वो सीधा 40 या 30% पे लाता है। तो इसका आउटकम काफी सीवियर होता है। तो in a way what you are doing is you are making yourself more vulnerable to any severe outcome of the disease, and this is fairly commonly seen in people who are smokers. So, Dr. Samir, any time is a very good time to quit tobacco, quit smoking. But would you say that it is very important at this point of time when we are going through the COVID-19 pandemic, it is very important that one should really refrain from tobacco abuse. And it is probably the best time to realize that it is a good time to, quit smoking or quit tobacco abuse. I think so. COVID-19 has made all of us realize how important our health is. You might be having all the money in this world. You might be very famous. You might be very rich. You might be looking very good. But if your health is not with you, so it is it's a very difficult thing to deal with. And COVID-19 has brought all of us into very difficult scenarios. So health definitely comes to forefront. जब स्मोकिंग की या टोबैको की बात करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू आस्क समवन टू क्विट स्मोकिंग, बट ओवर द पास्ट सो मेनी इयर्स व्हेन आई हैव ट्रीटेड पेशेंट्स हु कम टू मी फॉर smoking cessation program, so it's easier said than done. There are a lot of hurdles when it comes to actually quitting smoking, and if COVID-19 or anything unfortunate that has happened due to COVID-19 around you or around your family can motivate you to quit smoking, definitely it's a good way to start with. But to quit smoking takes a lot of effort. It needs to be a very programmed effort carried over not few days but few months, and then eventually there's a possibility that you can actually quit the stub. Now, Dr. Samir, as you said that it is not very easy to quit. बहुत मुश्किल है quit करना भी, especially उनके लिए who have abused it for a long time over the years. Now, being a former smoker myself, I can really agree with that. It is very difficult to quit smoking. But say, for our viewers, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग unfortunately who are into smoking heavily or who are into tobacco abuse, if they want to quit smoking or they want to quit having their tobacco, so किस तरीके से वो ये achieve कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? Yeah. So I have been running a smoking cessation program for the past 5 years, and मेरा काफी अलग-अलग तरीके के पेशेंट से कंसल्टेशन हुआ है, काउंसलिंग हुआ है रिगार्डिंग स्मोकिंग सेसेशन, वेरिड एज ग्रुप्स एंड पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स. तो आई बिलीव सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है कि वी शुड नॉट इन एनी वे criminalize or what we say outcast a person who's smoking. I have always seen this, that if I start telling a smoker how wrong he has been into smoking, so वहाँ पे ही एक mental block आ जाता है, जिसके बाद मेरा communication smoker के साथ almost nil हो जाता है. उसके बाद मैं जो भी बात करता हूँ वो एक तरीके से उन तक पहुँचती नहीं है. So this is something very basic that we need to understand, that smoking has some clinical effects on your body because of which a person gets to smoking. एक थोड़ा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है. कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको स्मोकिंग करने की चांसेस ज्यादा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्मोकिंग की आदत ज्यादा लगती है,
और इसी के साथ में कभी कभी ये सिचुएशनल रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि स्मोकिंग से आपका स्ट्रेस कम होगा, ये सारी रीजन की वजह से लोग स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी सबसे पहले हम ये बैरियर ब्रेक करते हैं कि आपने जो स्मोकिंग किया है इसको हमने अभी इसका आउटकम हम समझ चुके हैं, तो इसको हमने छोड़ना जरूरी है, इसको हमने स्टॉप करना है। ये जब बात स्मोकर को प्रॉपरली कन्विंस होती है तभी आगे के स्टेप्स है वो इफेक्टिव होते हैं। In my experience, the most important part to quit smoking is to get proper counseling. There are medications, there are specifically made medicines which help you in quitting smoking. Basically, it is called NRT, that is nicotine replacement therapy. I would not go into any further details because these should be taken under a doctor's prescription. The problem is they are available over the counter. So लोग काफी बार क्या होता है, खुद जाते हैं, टेलीविजन पे ऐड देखते हैं और एक NRT का ड्रग ले लेते हैं, कोई च्युइंग गम ले लेते हैं या लॉजेंज ले लेते हैं जिससे आपका निकोटीन रिप्लेसमेंट हो, और किसी वजह से वो फेल हो जाता है एंड दे बाउंस बैक टू स्मोकिंग एंड मे बी दिस टाइम दे स्मोक मोर देन व्हाट दे वर डूइंग बिफोर. So you need to go to a physician who is into smoking cessation because आपकी नंबर ऑफ सिगरेट्स और आप सुबह उठ के किस टाइम पे स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस डोज में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करनी है. So it has to be with a doctor's prescription. But even when we go for nicotine replacement therapy, what is most important is proper counseling. So you should go to a therapist or a counselor to understand what are the reasons that you are unable to quit smoking. Is there any kind of physical or mental cause leading to dependency on tobacco? Once you get clear of that, then NRT can be much more helpful. One more question, one more important question, that whenever a person decides to quit smoking, एक बहुत important जो चीज किसी भी स्मोकर के या जो भी टोबैको अब्यूज करता है, चाहे टोबैको खाता है, किसी भी तरीके से कंज्यूम करता है, उनको लगता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे कुछ, या उनको जो सेसेशन विड्रॉल जिसको बोलते हैं. Now, when I read the literature about it, जब when I wanted to quit and I was finally able to quit, मुझे भी बहुत सारा ऐसा लिटरेचर मिला कि 3 घंटे बाद ये होगा, 4 घंटे बाद ये होगा, 5 घंटे बाद ये होगा, 2 दिन बाद ये होगा. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले इसके विड्रॉल्स क्या होंगे. सेकेंडली, लोगों को विड्रॉल से डर के ही लोग क्विट करने की उनकी मंशा जो है वो खत्म हो जाती है. तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, बिकॉज आई एम श्योर कि उस विड्रॉल से डर के अगर आप बिना डरे अगर आप आगे जाओ तो काफी सारे बेनिफिट्स भी है. तो दो चीजें, एक तो विड्रॉल्स क्या होंगे, और अगर आप विड्रॉल्स को ओवरकम करते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं अगर आप क्विट करते हैं तो जब भी स्मोकिंग क्विट करने की बात आती है तो काफी सारे पॉइंट्स सामने आते हैं जिसमें से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है. एक तो देयर इज नो ब्लैंकेट रूल कि अगर ए पर्सन ने अगर स्मोकिंग क्विट करते हो कुछ एक्सपीरियंस किया तो बी पर्सन को भी सिमिलर एक्सपीरियंस होगा. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. जब भी हम विड्रॉल की बात करते हैं तो हमारे बॉडी को जब किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी स्टिमुलस का एक आदत हो जाती है या फिर एडिक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में जब भी इसका स्टिमुलस रुक जाता है तो हमारी बॉडी सर्टेन रिएक्शंस देती है. स्मोकिंग सिजेशंस में लोगों को थोड़ा बहुत एंजाइटी हो सकती है, एक सडन अर्ज होती है फिर से स्मोक करने की, एंड इसकी वजह से काफी बार मूड स्विंग्स या मूड चेंजेस आते हैं. बट एज आई सेड दिस कैन वेरी पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों को ये बहुत माइल्ड रहते हैं, कुछ लोगों को होते भी नहीं है. एंड द बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग सिजेशन आर वे मोर देन द डिस्कम्फर्ट ऑफ विड्रॉल विच इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. एंड एज आई सेड कि जब भी हम ये विड्रॉल्स की बात करते हैं तो वी हैव टू कंबाइन योर स्मोकिंग सिजेशन विथ काउंसलिंग, therapy, as well as some medicinal treatment such as nicotine replacement treatment. So if you are having anxiety, if you are having mood swings because of cessation withdrawal, so you can continue with your counseling or therapy in a way कि withdrawal को भी हम control में ला सकते हैं. डॉक्टर समीर, आपने बताया कि आप यू हैव बीन रनिंग अ सेसेशन प्रोग्राम फॉर क्वाइट सम इयर्स नाउ, सो आई एम श्योर कि the dynamic doctor that you are, you must have been able to
persuade quite a few patients of yours to stop tobacco use, stop smoking. Now down the years, whenever if you have met a patient after many years whom you helped smoking, how has that person's life changed, and what has happened with the person? So, frankly speaking, for all my patients who have quit tobacco, it has been 99.9% because of their efforts, and mostly 0.1% from my side. Because जिन लोगों ने भी smoking quit किया है, they were majorly driven from inside. I was just one of the pit stops where they found a reason to actually quit smoking. So it comes from the inside. If you are very sure that you wish to do it, you can go to a doctor, you can go to a counselor, and finally achieve your goal. So it comes from inside. And as you rightly said, बहुत सारे patients हैं जो quit करने के बाद 2 साल 3 साल या 5 साल बाद, when we consider that yes, now you're not going back to smoking. So first thing obviously they experience is a feeling of well-being. So it makes them feel good. The fact that they are not smoking, the fact that they are not exposed to certain irritants inside their throat. Obviously there is some part of stigma also involved, because smoking करते हो काफी बार आप या तो बाथरूम में जाते हैं, या आप ऑफिस छोड़ के बालकनी में जाते हैं, या इफ इट्स नॉट योर फ्रेंड्स देन आप फैमिली से छुपाते हैं. तो ये सारी चीजों से भी आपको फ्रीडम मिल जाता है. काफी लोगों की स्मोकिंग डिपेंडेंसी किसी और चीज से होती है. वर्क रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, करियर या एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रेस रहता है. तो जैसे द मोमेंट दे स्टॉप देयर स्मोकिंग, they eventually are able to untangle the stress also. So this is another benefit that happens after they quit smoking. But the most important is something which is not visible to your eyes, which is all the dangers of smoking which you have now completely avoided. मतलब हो सकता है 10 साल या 20 साल बाद आपको स्मोकिंग से कैंसर हो या हार्ट अटैक हो, तो आपने आज ही उसको रोक दिया है. तो ये काफी सारे सीन एंड अनसीन बेनिफिट्स होते हैं whenever you quit smoking. डॉक्टर समीर, वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू. हम देखते हैं अपने आसपास, जैसे आपने बताया कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है, बहुत अलग अलग तरीके से टोबैको प्रोडक्ट्स को पुश किया जाता है. नाउ as I am sure you must have observed, a lot many youngsters are hooked to tobacco, a lot many youngsters are hooked to smoking. हम देखते हैं टीनेजर्स में स्मोकिंग का जो मैक्सिमम पीपल जो स्टार्ट करते हैं वो वही से स्टार्ट करते हैं. एंड द स्कैरी पार्ट इज जो एक एज ब्रैकेट था स्टार्ट करने का, वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है. तो अगर कुछ सालों पहले लोग 18 पे स्टार्ट करते तो आप 15 पे भी स्टार्ट कर लेते हैं लोग. हम लोग देखते हैं, इट्स वेरी स्कैरी कि हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स को भी देखते हैं दैट दे आर इंडल्जिंग इन स्मोकिंग. सो एज वन ऑफ द known pulmonologist in the city of Nagpur, and someone who has witnessed the patients who has so many years, someone who runs a smoking cessation program, what would your advice be to people, specifically to youngsters who start smoking because of maybe peer pressure, या तो try कर रहे हैं, thrill के लिए कर रहे हैं, तो आपकी क्या advice होगी उनको? तो firstly I would like to start with something which is slightly different from your question. तो जब हम WHO के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस में या बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में लास्ट 2 डेकेड्स में स्मोकिंग में ऑलमोस्ट 80 to 90% फॉल हुआ है. Okay. So when we look at the American population, so the amount of smoking consumption that was there during the 1970s and 80s has fallen down at a very large scale when we see in today's age. Okay. So smoking has come to a downfall in developed countries. This is purely a matter of economics, a matter of business promotion. कि जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कोई प्रोडक्ट्स एक तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उनको फिर डेवलपिंग कंट्रीज में और ज्यादा पुश किया जाता है. तो अभी आप देखोगे कि इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान, दीज आर द कंट्रीज जहां अभी स्मोकिंग के जो प्रोडक्ट्स है उनको ज्यादा पुश किया जा रहा है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इटली में इफ यू कम अक्रॉस पीपल हु आर इन देयर 30s and 40s, मोस्ट ऑफ देम हैव नेवर स्मोक्ड
and it is their parents who have smoked a lot during the 1950s and 1960s. Okay. So now they are seeing a generation who's completely averse to smoking because they have seen the ill effects of chain smoking with their parents' generation. This is slightly different in India. We are now seeing youngsters who are hooked onto smoking and parents who have never smoked. तो ये एक cycle है जो which is majorly driven by the industry, not by anything else. So अब बात करते हैं कि youngsters को जब भी हम एक तरीके से motivate करना चाहते हैं to quit smoking, I think so the government has taken a lot of efforts when it comes to print media, and whenever you go to see a movie, you are shown how bad smoking can be. I'm sure everybody knows. I suppose he is Ramesh. मेरा नाम रमेश. Everybody, I think everybody knows Ramesh, even yes, those who so don't smoke. Yes, so मेरा नाम रमेश है और मैं पहले इतना सिगरेट पिया करता था. तो I think so government has taken a lot of efforts, but what I feel is majorly missing is a part of therapy, a part of counseling. When it comes to something like addiction, it has got nothing to do with the organ that it is involved with. आप किसी को कितना भी बता दीजिए कि आप स्मोकिंग करने से आपके लंग्स काले हो जाएंगे या आपके लंग्स में टार जमा हो जाएगा या आपको इस टाइप का कैंसर हो जाएगा. So you are majorly missing the point. You are trying to create fear. What exactly is required is something that India is not used to, which is talking about mental health. A lot of people who are hooked onto smoking need a counseling or a therapy from a professional, जिनको हम psychologist या psychiatrist कहते हैं. Not your friend, not your Facebook friend, or not कोई गली का भैया who will come and tell ये मत करना करके. This is something that needs to be taken seriously. The root cause of addiction is something that goes on in your brain and not what goes on in your body. So when it comes to your brain, you need some amount of counseling, some professional counseling. And in India, जब भी मैं हमारे patients को बोलता हूँ कि you need to go to XYZ doctor और आप थोड़ा सा उनके साथ 5 to 6 sessions कीजिए, तो उनको ये एक डाउट रहता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है. But counseling is not related to mental disease. It is related to how your brain functions, how your mood functions. So when it comes to quitting, you have to actually find the root cause. Go for a proper methodical process, जिसको हम smoking cessation program कहते हैं. Do it stepwise. Don't expect very magical results. It can never happen कि आपने आज smoking छोड़ दिया है और within a day आप फिर कभी वापस स्मोक नहीं करोगे. ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है. इसको धीरे धीरे हमको कम करना रहता है, इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जाता है और इसके रूट कॉज को हमको किसी तरीके से इसको हमको अटेंड करना रहता है. So the best way is obviously you need to realize whether you should quit or not, and once you have that realization, then you have to go ahead with a very systematic and programmed manner. All right, thank you so much, Dr. Samir Arbat. So, guys and girls, there it was, Dr. Samir Arbat, the pulmonologist, with us on the occasion of World No Tobacco Day. Thank you so much, Dr. Arbat, for your inputs, and I hope that the viewers who are watching this today, they take some good things out of the things that you just said. Thank you so much for talking to us. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.